بڑی کلوز کانفرنس جس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے انداز ہی بڑی محبت والا ہے. ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ ملک قاسم جانی کے لیے. آج کا دن منعقد کیوں کروایا گیا؟ آج کے دن کے بارے میں جو میں نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں, یہ ایلیبوریٹریلی ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے آج کی اس کاوش کو دیکھیں. میں شاہد حسین جویا صاحب سے مل کے میں نے انہیں کہا کہ ایک شعر مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا جو حوض کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے. تو جس دور میں ہم موجود ہیں, اس دور میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں, اپنے بارے میں کام کروں, پیسے کما لوں. اس موسم میں اس طرح کی کانفرنس کا آئیڈیا لے کر آنا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کار خیر سے کم بات نہیں ہے. تو آج کی اس خوبصورت علمی ادبی اور ملٹائی ڈائمنشنل, ملٹائی ڈائریکشنل اور خوبصورت شخصیت جناب امتیاز کوکل صاحب کو ویلکم کہتا ہوں کہ آپ جناب تشریف لائے. بھرپور کلیپ کرنے ہیں. تو آج کے دن کے اغراض و مقاصد, آج کا دن منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے, اس کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں لب کشائی کے لیے جناب میاں عتیق جویا صاحب جو فاؤنڈر ہیں aloowaala.com, aloo.pk اور potatoes.pk کے فاؤنڈر ہیں, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بام عروج پہ نظر آئیں گے. تشریف لاتے ہیں بڑی بھرپور کلیپ کے ساتھ جناب میاں عتیق جویا صاحب. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اسپیشلی ہماری کچھ کراچی سے رات کو ہمارے مہمان پہنچے ہیں, احمد بھائی ہیں, اور ان کے علاوہ کوثر باجی یہاں پہ ہیں, اور ہماری ایک چھوٹی بیٹی ہیں جو کہ صرف 13 سال کی ہیں اور یہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اور ہمارے طاہر زیدی صاحب کراچی سے تشریف لائے, میڈم سدرا مغل صاحبہ صاحبال سے تشریف لائی ہیں, رضوان فیکٹری والا صاحب نظر آ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, جزاکم اللہ خیر. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا جی, کیونکہ ہماری خوش قسمتی ہے آج کہ ہمارے پاس شاہد حسین جویا صاحب جیسی شخصیت موجود ہے جو کہ پاکستان میں مائکرو بزنس کی بانی سمجھی جاتی ہے کہ 1000 روپیہ کسی کے پاس ہے تو وہ بھی اپنی جیب میں ڈال کے لیں گے, انشاءاللہ اس کو بزنس کنسلٹنسی دیں گے اور اس کو بزنس کروا کے بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس طارق تنویر صاحب ہیں, ساجد اقبال صندوق صاحب ہیں. میں اپنا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہوں گا, میں چاہوں گا کہ وہ آ کے یہاں پہ جو ہے نا کہ وہ بیسیکلی آدمی کے لیے یہ شو سجایا ہے. تھوڑا سا میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دنیا آن لائن ہو گئی ہے, ڈیجیٹل ہو گئی ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا سے کوئی 10, 15, 20 سال پیچھے ہوتے ہیں اور ہم اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں. میں صرف آپ کو تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ کووڈ کے جو لاسٹ 2 ایئرس گزرے ہیں اس میں سے اس سے پہلے دنیا کے جو سب سے ریچسٹ پرسن تھے, امیر ترین آدمی تھے, دیٹ واز بل گیٹس. ایمیزون کے بانی جیف بیزوس, ایون اس نے دنیا کی مہنگی ترین طلاق بھی اپنی بیوی کو دی, اس کے باوجود وہ دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے. کیسے بنے؟ آن لائن بزنس کی وجہ سے. ایمیزون کے بانی, حالانکہ ایمیزون پہ آپ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک خرید سکتے ہیں, آن لائن شپنگ ہوتی ہے. ایمیزون ایک 5 روپے کی گنجی بھی نہیں بناتا, وہ بھی چائنا بناتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دنیا, تو وہ کیسے بنے؟ وہ امیر ہو گئے, لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو گئے. تو یہ ڈیجیٹل ورلڈ کی, آن لائن ورلڈ کی یہی خصوصیت ہے. اور اس کے علاوہ اگر مارک زکربرگ دیکھ لیں, وہ آتے ہیں فیس بک کے جو بانی آتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسلا کے جو ہیں ایلون ماسک صاحب آتے ہیں. جتنے بھی آپ دیکھیں کہ وہ سارے ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں, جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. تو جو بھی دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ نہیں کرے گا وہ قومیں ہمیشہ سے پیچھے رہ جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ ہم اپنا یہ آلو کا بزنس آن لائن کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ میں بھی یہیں کا, اسی دیپال پور کی دھرتی کا سپوت ہوں. تو جب مجھے باہر لوگ ہم تعارف ہوتا تھا تو انہیں بتاتے تھے کہ یار میرا دیپال پور سے تعلق ہے, تو میں یہ کہتے یار وہاں کے تو آلو بڑے مشہور ہیں, یار وہاں کی مکئی بڑی مشہور ہے. تو میرے ذہن میں یہ کچھ, میں کہتا تھا کہ یار ٹھیک ہے بس ایسے ہی صحیح ہے.
तो 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले जब मैंने करना शुरू किया, मेरे एक हमारे बिजनेस गुरु हैं ई कॉमर्स के, पाकिस्तान में बानी समझे जाते हैं, उनकी मेहरबानी है, उस्मान चुगताई साहब ई कॉमर्स वाला ही, उनकी तस्वीर भी लगी, उनका आज कुछ ज़ाती इशू था जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद शायद जोया साहब से मुलाकात हुई। तो ये है कि आप ऑनलाइन मंडियां कैसे एग्जिस्ट करनी है, हमें वर्चुअल जो है वर्ल्ड बिल्ड करनी है। दुनिया देखें मेटावर्स की जानब जा रही है, वर्चुअल प्रेजेंस जो लोग नहीं देंगे वो नाकाम हो जाएंगे। आपको मैं इसकी मिसाल ये दे, ऑनलाइन किया है, आजकल जब हम आलू का बिजनेस कर रहे हैं तो ये कहते हैं जी ऑनलाइन आ गई जी ऑनलाइन, अभी यही वेट करें, हमारा बिजनेस ऑनलाइन है। ये जो आपकी दुनिया पूरी है ये आपके इस मोबाइल में सिमट के आ गई है। जो बंदा इस चीज़ को समझ लेगा वो कामयाब होगा, जो इस टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा वो नाकाम रहेगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड इसकी जो है ना वो एग्जिस्टेंस अपनी क्रिएट करें आलू के हिसाब से। उसके लिए मैंने आपको एक सरप्राइज देना चाहूँगा। मैंने आज तक कभी किसी से बात नहीं की, शायद मेरे एक दोस्त हैं मियां रफाकत क्लासन साहब, उनसे आइडिया शेयर होते रहते हैं। या को 15 दिन पहले भाई ताहिर शाह साहब की मैं यादत के लिए मॉडल टाउन गया था, तो वहाँ पर उनसे हल्का सा मैंने आइडिया शेयर किया था कि मेरे ज़हन में कुछ है। तो आलू के हिसाब से दुनिया में टोटल इस वक्त 15 मंडियाँ एग्जिस्ट करती हैं। 15 लोग हैं जिन्होंने आलू के हवाले से इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ाई हुई है। आपके सामने आपका ये भाई खातम अल्हम्दुलिल्लाह 12 जो है उसके हिसाब से इंटरनेशनल डोमेन्स जो हैं वो मेरे पास हैं, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, अतीकुर रहमान जुलिया से अर्जा के नाम पे है। और मैं ये सारी की सारी चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई मलिक कासिम जानी साहब, हम इनसे कहेंगे कि हम आपको पूरा के पूरा सेटअप लगा के देते हैं कि कैसे हम अपनी जो इजलास हैं उनको डिजिटली मार्केट करके दुनिया भर तक पहुंचा सकते हैं। जब हम ये काम करेंगे तो उससे हमारा ये क्या होगा, हमारे मुल्क में डॉलर की फरावानी होगी, हमारे मुल्क में फॉरेन रिजर्व आएगा। जब फॉरेन रिजर्व आएगा तो हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी और ये इंशाल्लाह एक बहुत ही गेम चेंजर चीज़ साबित होगी। तो ये आलूवाला.com, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये .com की अहमियत क्या है, या ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है इसकी अहमियत क्या है। आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी भी किसी के पास लैपटॉप है या अपने मोबाइल पे जाके GoDaddy करे, आज से 2 साल पहले आलू.com मैंने परचेज करना चाहिए। वो इंडिया के एक साहब थे, अभी भी 17 लाख पे बिड पड़ी हुई इसकी। 17 लाख से जब उसने बिड स्टार्ट की 70 लाख पे गया तो मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा नहीं यार, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक डोमेन 70 लाख पे करूँ, वो मुझे कहता है 1 करोड़ की देंगे। उसी दिन मैंने वहां पे डिसाइड किया कि अगर वो इंटरनेशनली आलू.com का ऑर्डर हो सकता है तो आलू.pk मैंने परचेज कर ली। आलू.pk परचेज की, इसके बाद आलूवाला.com है, इसको इंशाल्लाह एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये हमारे एक्सपर्ट्स आके किया करेंगे। तो उनको जो है आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करनी है, ई कॉमर्स सेटअप, उसके लिए मेरी दीपालपुर, चूंकि मैं इस धरती का सपूत हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए जो मेरी सर्विसेज होंगी वो हर वक्त हाजिर रहेंगी। हम आपको पूरे का पूरा एक ई कॉमर्स का सेटअप लगा के देंगे, पूरे का पूरा आपको बताएंगे कि आप कैसे इन टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए आप पूरी दुनिया तक अपनी मार्केट है ना उसकी एक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, और हमारी रहनुमाई इसमें शायद भाई करेंगे, वो बताएंगे कि कैसे कैसे माइक्रो निशिस बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। खैर अब उनकी टर्न आने वाली है। तो कासिम भाई थैंक यू वेरी मच। जब इनसे मैंने आज से 15 दिन पहले मेरा एक ज़ाती काम था और मैं था भी उस वक्त काफ़ी गुस्से में, तो मैंने इनसे गुजारिश की, फिर इनको मैंने आइडिया दिया, इनको बड़ा पसंद आया। इनके भाई छोटे मलिक अशमत साहब भी थे, इन्होंने इस चीज़ से एग्री किया, हाँ जी वाकई ये बात जो कर रहे हैं ये आप ठीक कर रहे हैं। तो मलिक साहब आपके लिए आपका छोटा भाई हाजिर है। आपको इसके लिए जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए होती है, जिस आलू के हिसाब हवाले से होगी, आगे इंशाल्लाह मकई के हवाले से होगी, हम किस तरह अपने फार्मर का और अपने ग्रोअर का और अपने जो काश्तकार है उसका भला कर सकते हैं, उसके लिए मेरी खिदमत हाजिर रहेगी। ये आलूवाला.com, आलू.pk, potatoes.pk, alupk.com और इस किस्म की 12 के करीब हैं। अभी जो 3 चीज़ें हैं जिसके लिए मेरी बिडिंग चल रही है, इंशाल्लाह दुआ करें कि वो भी हम कर लें और इंशाल्लाह मैं ये प्लेट में रखकर अपने जो दीपालपुर के जो किसान हैं हमारे भाई हैं उनको पेश करेंगे, ताकि हमारा इंशाल्लाह उससे इलाका भी डेवलप होगा और हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच। आपसे गुजारिश है कि आप लोगों के ज़हन में जो भी क्वेश्चन आए वो तारिक भाई, साजिद इकबाल संधू साहब और शाहिद भाई, इनसे आप नोट करते जाइएगा। माइक आपके पास अवेलेबल है, अदरवाइज हमारे पास एक और सेकेंडरी माइक की सहूलत भी अवेलेबल है। आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा।
उसके अलावा जितनी भी हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज हैं, रफीक इंटरव्यू वाला की जानिब से ये बैठे हैं, ये मेगा सक्सेस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हैं, ये पूरे पाकिस्तान में इंटरव्यूज करते हैं और जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स वाले होते हैं उनको ये प्रमोट भी करते हैं। तो ये उनके इंटरव्यू भी करना चाहेंगे, तो जो लोग इधर से गुजरेंगे तो ये इनके छोटे छोटे क्लिप इंटरव्यू के करेंगे, इनको भी प्लीज टाइम दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू ऑल, जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक तो सारे जेडे साडे दोस्त तशरीफ रखने ने थोड़ी देर लिए मोबाइल अपनी जेब च रखते, थोड़ी देर या सामने अपनी टेबल थोड़े माशाल्लाह यानी सब स्टार बड़ा ही शानदार इंज लग रहा है जिवें मतलब है भी मैं जाना बाहर के मुल्क तो उत्थे भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस हाल बहुत नहीं होंगे। तो सब तो पहले तो मलिक साहब वास्ते ये तालियां बजाना जी तुहाडे वास्ते इन्नी शानदार। अच्छा तालियां मारन च मैं देखा भी वो स्टेज सेक्रेटरी अपना जे साडे मुमताज ठक्कू साहब ने उन्होंने तुहानू बार-बार गुजारिश की तालियां दी, लेकिन तुसी तालियां बहुत या थोड़ियां बजाइयां ने या होरियां नहीं बजाइयां ने। तुसी यकीन जान लो भी तुसी इत्थे एक ताली मारनी है ते अगले जान 70 तालियां दा सवाल मिलना ते नाले थोड़ा जिहा पिछे हो के बैठो सारे ताकि सब नजर आइए। ये सारे दोस्त अपनी लाल में अपनी जी है कमर अपनी कुर्सी ना, हाँ हूँ सारे नजर आएंगे सारे लोग। शेख साहब तुम वीडियो बना रहे अच्छा मेहरबानी थोड़ा सारे ना अपनी कमर में सीधा करके लाएंगे। सानू टीवी तो कहते हैं जी इंज बहना है भी जिमें थोड़ा फ्लैक्स लगे है ना फ्लैक्स कि इस तरह बैठना है बिल्कुल कुर्सी के नाल सीधा होकर बैठना है, कोई भी शोभा नहीं किया। अच्छा ते एक तो मैं ये अपना गल की ताड़ियां मारी, फिर ताड़ियां जड़ियां ने तुसी उन्होंने स्वाद बन देना जो तुम पसंद आए कोई गलबात मेरी। ते बस मैं एक गपशप आलूओं ते ही लाऊंगी जेडे सारे आलू ग्रोअर ने बायर ने वेदर ने हम सब। लेकिन मैं जदों इस मंडी का इफ्तिताह होया कितने साल हो गए पट्टी साहब, कितने साल हो गए 6 साल। उदों भी इत्थे जेडे अपना फ्राइस नकाबत के स्टेट सेक्रेटरी थे वो मैं ही अंजाम दिते सर। और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है, बड़ी ऑनर है कि मैं इत्थे गपशप ला के गया तो हुण मैं जदों लंघना तो जदों हज़ारां बोरियां में भी हैं तो पईयां ते वो ट्रकां जा रही ने ते आ रही ने ते विक रहे आलू। ते सच्ची बात है कि क्रेडिट गोज टू मलिक जानी साहब। कितने मजदूर में देखे उन्हें आया तो मैं आया मैं ते हवा चल रही थी मेरे ऊपर बड़ी मिट्टी पई है। यकीन मैं अपनी उस मिट्टी को मैं अपने इत्थे मलिया भी कि दीपाल की मिट्टी है साढ़े दीपाल की। लेकिन फिर मैं शेख सुल्तान को गया कि भाई शेख सुल्तान को मैं कहा कि शेख साहब हुण तुसीं मैनूं पहले नवाओ ताकि मैनूं ना लोरों आया तो गर्दों बाहर होड़ भी पई है। तो वो जदों मैनूं शेख साहब लै गए वॉशरूम च ते तुसीं इन्हां दे वॉशरूम च नहीं गए शेख सुल्तान साहब अपने घर च जिहड़े वॉशरूम ने उत्थे किन्ने साबण पे होंदे ने एक या क्यों भी इंज ही है यार जवाब तो दो यार ओ यार एक या शेख साहब के वॉशरूम च 30-35 जने ने वो पे साबण ले बोए लख फलाना टमकाना वो मैं वो जेड़े इन्होंने उत्थे मौलवी सी असिस्टेंट मौलवी दाढ़ी वाले बुजुर्ग वो मैं वो पूछे भी यार इन्ने साबण उन्हें क्या कि यार मैं शहर दे ना मुद्दे नु आ ते जेड़ा साबण बच जांदा है शेख साहब ने वॉशरूम ते आने में मस्जिद में नमाज पढ़ने गया अल्लाह का शुक्र है ते मैं मौलवी साहब पूछे कि मौलवी साहब असि सारे ने वैक्सीन लगा ली है तुसी भी लगा रही है
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਯੈਸ अख्तर पट्टी साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ, बड़े मेहरबान ने अपने बच्चों के नाम बड़े औखे रखे ने, वो याद भी करिए तो फिर भूल जाते। अख्तर पट्टी साहब कहने ने बीमार हो गए, जानते हो ना अख्तर पट्टी साहब नहीं खड़े हो नहीं तालियां मारो अख्तर साहब। वो साड़ी भाभी इन्होंने अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने जरा बैठा से एमरजेंसी उन्हें पूछा भी तुहाडे दो मिनट बीमार कौन है, तो उन्होंने साड़ी भाभी कहने लगे भी मेरे शौहर ने ते बीमार ने उन्होंने देखो। तो डॉक्टर साहब ने कहा भी तुसी बाजी बाहर बैठो फिर मैंने चेक करना। तो डॉक्टर साहब ने चेक करना पे चेक चुक किया, स्टेथोस्कोप लाई और जब सारा चेक किया तो डॉक्टर साहब ने कहा भी यार अख्तर पट्टी तैनू तो लगता है बहुत बड़ी बीमारी चमड़ गई है। कहना होली बोलो बाहर बैठी हुई है शाबाश घर जाके सिंह सारी हाँ उन्होंने क्या बाहर बैठी हुई है। यस ते मियां यासिन भट्टू साहब भी मैं याद आ रहा मैं बैठा सी कोई एक गल हुई है तो मैं अपनी लिखी है तुसी दोस्तों ने देखा नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने यासिन खान भट्टू साहब साढ़े वजीरे खजाना भी रहे वजीरे तालीम भी रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो छोटी उम्र के ने उन्होंने फौज में 8-10 साल तो हो गए वो मियां यासिन भट्टू साहब गुलाम मुस्तफा साहब तशरीफ ले आए गुलाम मुस्तफा गति वाला है ये सियासी बंदे बड़ियां जफियां अगर इलेक्शन नहीं आना पे मियां यासिन भट्टू नु तुसी जरूर पढ़ना है देखना उनकी जिंदगी बारे बायोग्राफी है। वो कह रहे सन 1985 के जलसे इतने मियां अता साहब इलेक्शन लड़ रहे सन 1985 तुसी मजा वो बंदा ले गए गल्लां दा जेड़ा इतने मेरे बंदे तवज्जो रखेगा। 85 के इलेक्शन है मियां अता साहब का निशान कुर्सी सी ते उन्होंने निशान छतरी सी मियां यासिन भट्टू साहब अगर याद है दोस्तों हाँ नहीं वो बगैर गैर जमाती तो मियां यासिन भट्टू साहब जेड़े सन वो हुण तक तुसीं देखे ना सियासतदान बेलगाम बदजुबान बद कलाम जुबाना आलूदा हुई उन्होंने मैं एक दी गल नहीं कर रहा पहले सियासत च कोई तो नहीं सी बड़ी वकार बड़ी इज्जत सी ते मियां यासिन भट्टू साहब ने या दीगर सियासतदान गालियां नहीं देते सन लेकिन चुटकला जरूर सुना देते सन मुखालिफ गया ते कहने लगे तुहाडे वास्ते दोनों वास्ते कहने लगे भाई एक जलसे च गल जिसने बंदे कहने लगे जानी साहब कि एक बंदा ना उल्लू बेच रहा है एक बंदा नाल गल करनी है एक बंदा उल्लू बेच दो छोटा देख बड़ा उन्हें क्या खरीदार ने कयूम साहब ने क्यों भाई बड़ा उल्लू किन्ने है उन्हें कह लिए मैं आलू खरीद लगा बड़ा उल्लू किन्ने का उन्हें कह लिए 1000 रुपए का उन्हें कहा छोटा उन्हें कही 5000 उन्हें कही यार बड़ा उल्लू 1000 छोटा 5000 लेकिन समझ नहीं आई उन्हें क्या मियां जेड़ा बड़ा उल्लू है ये सिर्फ उल्लू है ते जेड़ा आ छोटा है उल्लू है ते उल्लू दा पट्ठा भी है उल्लू दा पट्ठा भी है ते ओ मियां यासिन भट्टू साहब कॉफी बहुत शानदार पीते सन कॉफी ते मैं कि मियां साहब बड़ी अच्छी कॉफी बनाते हो किवें बनाते हैं तो उन्होंने मुलाजिम कहने लगे भी कोई ऐसी गल नहीं मैं पानी लैके दूध लैके उन्होंने उबालना ते अच्छी तरह कॉफी नूं हिला देना भट्टू साहब कॉफी नूं हिलाना ते फिर सर जिहड़ियां तुहाड़ियां जुराबां ने ना उन्हां विच मैं छान देना तुहाड़ियां ते मियां साहब कहने लगे सालमा तू मेरियां एडियां महंगियां ते रेशमी जुराबां विच इनू छानना है उन्हें कहा नहीं मियां जी पुरानियां जुराबां नवियां च मैं नहीं छानना ते बस आखिरी मैं गल सुना के ते अपना इजाजत चाहांगा कि
साडी जिन्नी पैदावार है मुल्क की और उनका किसान जरा जिम्मेदार है और किसान अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी करता है। और सच्ची बात है हुकूमत ने हमेशा जिमींदारों की कमर पे सोटी मारी डंडा। और मैं एक मरला मेरी जगह नहीं जमीन जी होंगी है लैंड जी है काश्तकारी असी नहायत गरीबान के और मजदूरों की औलाद है और अल्लाह का शुक्र। सच्ची बात है कि मैं हमेशा टेलीविजन चैनल पर भी जो मैं जियो च काम करता रहा 2-3 साल पहले वो बोरी जी सी नहीं बिक सकी वो लोगों ने बल्कि आलू जलाए भी मैं उनकी भरपूर गल की कि दीपालपुर के दिहाड़ी के लोगों ने आलूओं को जलाया बोरियों को जलाया 2 साल 3 साल की गल है 3 साल मैं जरूर गल कर यूरिया खाद से नहीं मिल रही थी मैं उनके एक वीडियो बनाई घर बैठ के उठे हो या मैं एक स्टोर से यूरिया की खाद की बोरी ली उन्हें बैठ के छोटियाँ मारता रहे और मैं कहता रहा कि भी ये बोरी क्यों चली गई किधर चली गई क्यों गया मैं बोरी ना गला करता रहा और वो मैं जिमींदारों के इसलिए कि अगर जिमींदार खुशहाल होएगा तो सारा पाकिस्तान खुशहाल वरना कोई खुशहाली इस खुशहाल नहीं उम्मीद और जी शेर सुनाने ते जेड़ी मलिक कासिम जानी साहब ने अपनी जान ला के माल ला के वक्त ला के और उदों इन्होंने मुखालफत का बड़ा सामना सा क्यों जी इन्ना सामना सी कि आई कांट मेंशन बिफोर यू इन वर्ड्स इन्ना मुखालफत का सामना सी लेकिन कभी पानी भी रुके कभी दरियावां के बंद भी बनने गए कभी समुद्र के बंद भी बने गए क्यों जी पट्टी साहब और जींदी जानी अखां नाल असीं देख रहे हैं कि ये मंडी पाकिस्तान की शायद 1 नंबर मंडी होगी क्योंकि जानी साहब ने बुजुर्ग कहते कि जान माल वक्त जितने ला दिए उतने पैदा होनी शुरू कर इन्होंने जानी साहब ने अपनी जान भी लाई है अपना माल भी लाया अपना वक्त भी लाया और काश्तकार साढ़े इस शहर के इस मुजाफात के इस इलाके के भरपूर इस्तेफादा भी कर रहे हैं एंड मैं चाहूँगा कि हम कोई हक भी ना खाली रहे कि जिन्हों जिन्हों प्यार है आपकी मां ना वो तारीफ करेगा मलिक कासिम जानी साहब। दो गल्लां मैं अतीक जोया साहब वास्ते भी करांगा इनका ताल्लुक अपना अतीकुर रहमान जोया साहब का ताल्लुक साढ़े दीपालपुर नहायत रिनाउंड फैमिली का ताल्लुक है काश्तकार लेकिन बहुत ही अच्छे और सुंदर इंसान मैं इन्हों के अब्बा की ज़ियारत भी की इन्हों के जड़े अंकल ने श्री मियां मोहम्मद शीर जोया एडवोकेट वो साढ़े दीपालपुर के पहले एडवोकेट जोड़े सुप्रीम कोर्ट के पहले नंबर सुप्रीम कोर्ट जोड़े पहले नंबर में साढ़े और आसमा जहांगीर और दीगर लोग वोट मंगन भी चूंकि मैंने हमसायाओं का भी शर्फ है तो आते रहते फिर इन्हों के बड़े जोड़े भाई आफ्ताब साहब ने what a excellent speaker what a outstanding speaker in his student life और मैं सुना है बड़े ज़हीन बड़े फतीन और बहुत डिवोटेड और बड़े डेडिकेटेड लोग और फिर सब तो ज़्यादा है कि इन्होंने गल करने का हुनर आता है गल करने का हुनर आता है और मैं समझना कि आज की कॉन्फ्रेंस की जी कामयाबी और कामरानी है उनका ये सबूत है कि साढ़े इस शहर की इस कॉन्फ्रेंस हॉल में दीगर शहरों को भी नहायत ही काबिल सद एहतराम काबिल सद इज्जत वाक़ एहतराम दोस्त तशरीफ रखते हैं उन्होंने नाम उनका अज़कार सारे लोगों ने किया है मैं तो उन्हें खुशामदीद कहना खास तौर पर चौधरी ताहिर अरशाद साहब जिन्होंने असी इन्हों के वाले ग्रामी की भी हाजी अरशाद साहब की भी ज़ियारत की हुई है और कोई फैसला नहीं होता सी कि वो फिर उत्थे पहुंच जाता सी फैसला हाजी अरशाद साहब जो कह देंगे सी उन्होंने कर ते दीपालपुर की जी मिट्टी है इनके च तालीम दी है इनके च सेहत दी है इनके च एडवोकेट्स ने इनके च जजेस ने इनके च सियासतदान ने इनके च सहाफ़ी ने और फिर ज़मींदारों को मेरा सारा तुझे सलाम कहना है कि जरा बंदा 1 एकड़ की भी पैदावार अपनी 1 एकड़ की काश्तकारी करता है
मेरा सलामी साथकार ते आखिर मैं तो शेर सुनाने ने कि केड़े मुंह नाल जश्न मनाइए खामद होके किवें मनावा दसो जश्न बहारा दे खामद होके ए शादीशुदा वास्ते ने अपना उन्हां वास्ते नहीं मेरे बच्चे कच्चे ला खामद होके किवें मनावा दसो जश्न बहारा दे इत्थे खर्चे नहीं पै मुकदे बेगम दे शिंगारां दे ते मैनू शुगर ब्लड प्रेशर अंदरों अंदरी खा गए ने मैनू शुगर ब्लड प्रेशर अंदरों अंदरी खा गए ने ओए मैं पीना फिकियां चावा ते बेगम जूस सना किते जरूर पानी हां झिझकते रहना नहीं है अदा मोहब्बत की झिझकते रहना नहीं है अदा मोहब्बत की जो डर डर के की तो क्या मोहब्बत की और तुम्हारे वास्ते रखी है मैंने दो राहें तुम्हारे वास्ते रखी है मैंने दो राहें सो एक चुन लो मोहब्बत की या मोहब्बत की और बहुत हसीन हो लेकिन बहुत हसीन हो कलासन साहब बहुत हसीन हो लेकिन तुम नामुकम्मल हो सो मैं दे रहा हूँ तुझको दुआ मोहब्बत की ते ऐसा कहने ने ये बड़े नाराज बड़े उकताए बैठे ने ना की है डॉक्टर अहमद साहब ये इसलिए बैठे ने कि मैंने उन्होंने अपना बात दुख दसिया है मैं कहते क्यों एडे दुखी रहते हो कहते यार मेरा धोखा हो गया है मैं की धोखा है कहते जी अपना मैं 1.5 टन का एसी लेता है घर ले आके तोले सारा 11 किलो है इम्तियाज भाई हमारा फख्र है मैं तमहीद तो अब मैं नहीं पाता एक चंद अशार है पंजाबी के इम्तियाज भाई मैं अपनी नेक्स्ट अपने स्पीकर को बुलाने जा रहा हूँ पंजाबी के शेर नजवी साहब साढ़े पाक पतन बड़े अच्छे शायर है वो लिखते हैं कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरा दा बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरा दा उगड़ वाले उग पैदे ने सीना फाड़ के पत्थरा दा मैं दावत देता हूँ स्टेज पे हमारे बहुत टैलेंटेड भाई रफीक इंटरव्यू वाला 1500 से ज्यादा इंटरव्यू पाकिस्तानी लोगों के और पाकिस्तान से बाहर मौजूद जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं टीवी एंकर्स हैं उनके इंटरव्यू कर चुके हैं आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं रफीक इंटरव्यू वाला बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है बंजर जमीन हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजिम है तकमीले तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अतीक जोया साहब का और हमारे सेक्रेटरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर मैं बारे दीगर उनका शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद इमरान इम्पैक्ट वाला साहब का कि जिन्होंने बारहा कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने हमें दावत दी यहाँ पे आने की चूँकि मेहमान हमारे सीनियर मौजूद हैं मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं उनको सुनूं और इतना दूर से आने का मकसद यही था कि आपसे इंटरेक्ट हो और कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। मैं प्रोफेशनली मॉर्निंग में लेक्चरर हूँ प्यास ग्रुप ऑफ कॉलेज में एज अ उर्दू हेड ऑफ डिपार्टमेंट में और इवनिंग में मेगा सक्सेस पाकिस्तान को मैंने ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने 1500 प्लस जैसे इंटरव्यूज़ किए हैं और इंटरव्यू का आगाज़ जब मैंने किया तो मेरे पास एक मोबाइल था टूटा फूटा सोनी एरिक्सन लिया था 3500 रुपये का फ़ोन तो जिस पर तस्वीर भी सही नहीं आती थी और गर्म होकर बंद हो जाया करता था। मेरे अपने दोस्त और साथी उस मजाक उड़ाया करते होते थे मैं सेल्फियाँ बनाया करता था। फिर मेरी एक मेहरबान दोस्त से मुलाकात हुई रिहान अल्लाह वाला से और उस वक्त मैंने एक लेजेंड शख्स का इंटरव्यू किया था चरणजीत सिंह का। वो पेशावर में अफसोसनाक खबर हुई कि उनको फिर गोली मार दिया गया। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो वो रिहान भाई ने वीडियो देखी और रिहान भाई से फिर मेरा इस तरह कॉन्टैक्ट हुआ तो रिहान भाई ने मुझे 3 नाम सजेस्ट किए। एक उन्होंने कहा रफ़ीक एंकर और एक रफ़ीक ट्रेनर और तीसरा रखा कि रफ़ीक इंटरव्यू वाला रखें। इन सब में मुझे सबसे बुरा नाम जो लगा था वो रफ़ीक इंटरव्यू वाला लगा था। तो मैंने कहा ये रफ़ीक इंटरव्यू वाला बड़ा अजीब व गरीब सा नाम है
تو میں ٹرینر رکھ لیتا ہوں یا اینکر رکھ لیتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں پنجاب گروپ آف کالج میں لیکچرر بھی تھا. میں نے کہا بچے مذاق اڑائیں گے، میرے کولیگز ہیں وہ بھی مذاق اڑائیں گے. خیر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری بات کو ماننا پڑے گا. جس طریقے سے ان کا سٹائل ہے آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے. تو اس سے پہلے نہ تو میں فیس بک کی سیٹنگز کے بارے میں جانتا رہا ہوں، اور ابھی بھی پیج کی سیٹنگ، یوٹیوب کی سیٹنگ سے میں ناپاک. تو میں نے سیٹنگ میں جا کے رفیق انٹرویو والا کیا، تو اس کے بعد مجھے انتہائی عجیب لگا. بعد میں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو 60 دن کا ٹائم آ گیا. پھر میں نے یہ شعر ذہن میں دہرایا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور کام کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل اور انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کیا. اور آج سے 4 سال پہلے میں ایک لوکل سکول میں ٹیچر رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں. تقریباً کوئی 12,000 10,000 روپے پہ میں پڑھاتا رہا ہوں. اس وقت اللہ کا شکر ہے میں 1.5 لاکھ کے قریب میری ارننگ ہے، اور مزید میں بڑھتا جا رہا ہوں. میں شاہد حسین جوہر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایک تو ان سے ملاقات بھی ہوئی. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی صادق آتی ہے. آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اب وہ انڈسٹریز کے ذریعے اور لوگوں کو بزنس کے ذریعے تو نفع پہنچا ہی رہے ہیں، لیکن آج ایک چھوٹی سی ایک میسج مجھے ایسا دیا کہ میں اس وقت سے کشمکش میں ہوں اور سوچ میں مبتلا ہوں کہ مجھے مزید کچھ اپنے لیے کرنا چاہیے. واصف صاحب کا ایک قول میں یہاں پہ دہرانا چاہوں گا کہ تقرب الہی کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بے ضرر انسان سے ہوتا ہے. یعنی تقرب الہی کی ابتدا یہ ہے کہ آپ بے ضرر ہو جائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور تقرب الہی کی انتہا یہ ہے کہ آپ منفعت بخش ہو جائیں. یعنی کہ انہوں نے دیکھا تو یہ چیز فیل کی کہ اگر انہوں نے اتنی سٹرگل کی تو مزید انہیں کیا چاہیے اور انہیں کیا کرنا چاہیے. تو میگا سکسیس پاکستان کے ساتھ ہوں جی. آپ ضرور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آلموسٹ 200+ جو ہے انٹرویوز وہاں پہ ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے زیرو سے ہیرو بننے تک کا سفر طے کیا. کس کس مشکلات سے گزرنے کے بعد انہوں نے بزنسز کیے. جیسا کہ آج کا جو انٹرویو کیا، بہت سارے دوست احباب ہمارے بعد میں آئے. شاہد حسین جوہر صاحب نے 10 منٹ کے اندر پوری زندگی کا کرکس ہمیں بتا دیا. اگر جو لوگ موجود نہیں تھے اور انہوں نے کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، اگر یہ والی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یقین مانیں آپ کے اندر بھی ایک نئی تحریک آ گئی. چونکہ آنے کے بعد پھر بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں بتانی بھی ہیں، اور ہمارا ایک 100 انٹرویو کا دوبارہ ہمارا کانٹریکٹ بھی ہو گیا ہے. شاہد صاحب سے انشاءاللہ ہم ایک 100 انٹرویوز بھی کریں گے ان کے. اور میں مزید مخل نہیں ہونا چاہوں گا. مخل سے مجھے یاد آئے وہ کمالی صاحب. تو کمالی صاحب کا بھی انٹرویو ہو چکا ہے، وہ کیسے کامیاب ہو گئے یہ بھی دیکھنے کے لیے آپ میگا سکسیس کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. اب ہم دوبارہ آلو کی طرف. اچھا، کئی فارمر سے جب روبرو ہوئے ان سے پوچھا کہ یہ پانی لگانا ضروری نہیں تھا، آپ نے کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا یار ویسے ہی لگا دیا. تو پانی کی بچت، اگر ایک پانی ہم اپنی کراپ کا بچاتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ سائنٹسٹ جو پانی کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 2030 تک یا 2040 تک پاکستان کا جو کراپس کو پانی ہم دیتے ہیں، ایگریکلچر کے لیے پانی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. ہمارا گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ بہت معدوم ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس کو بڑے شوق سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے فارمرز ہم دیکھیں تو ہم پانی کو بالکل، ہماری نہ تو میئرمنٹ ہے اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنا پانی ہم کراپس کو لگا رہے ہیں اور کتنا لگ رہا ہے. اچھا، پانی کو بچانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اگر 1 گھنٹے کے حساب سے دیکھیں، اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ نہیں لگایا ہوا تو آپ خریدتے 1 گھنٹہ جو ہے وہ بھی 700 میں پہنچ چکا ہے، اور بجلی کے بل جو ہے وہ انکریز جیسے ہی ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک خرچہ اس میں ایڈ ہوا ہے. ہماری کراپ کو پیداوار لینے کے لیے پانی کا ایک بہت بڑا خرچہ ایڈ ہوا ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں عامر ظہور صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. انہوں نے فارمر کمیونٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام جو یہ انہوں نے کیا ہے کہ اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے ایک ٹیوب ویل کے حوالے سے کہ آپ اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ٹیوب ویل کو اسکیڈول کر سکتے ہیں، اس کو آن کر سکتے ہیں، آف کر سکتے ہیں.
اس کے پانی کو مینیج کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں یہاں پہ ضرور دوستوں کو جو فارمر کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے ان کو ضرور گائیڈ کریں. ایپ ٹیک کے فاؤنڈر ہیں عامر ظہور صاحب, ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کیجیے گا. عامر ظہور صاحب. پانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک پانی کی نعمت کا ہونا ہے. پوچھا کہ قیامت کے دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کن نعمتوں کا, انہوں نے کہا کھانے کو روٹی اور پینے کو ٹھنڈا پانی, یہ ان نعمتوں کا ذکر ہے. تو اللہ نے ہمیں اس دنیا کے ریجن میں پیدا کیا جہاں پانی کی فراوانی ہے, سبز دکھاتے آپ کو کھیت نظر آتے ہیں, لیکن آپ دنیا کا اگر نقشہ دیکھیں تو آپ کو بیرن زمین خالی نظر آئے گی. اگر آپ یہ مڈل ایسٹ کی زمین دیکھ لیں, آپ اسرائیل کی زمین جو کہ فلسطین کی زمین ہم اس کو کہتے ہیں, لیکن انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس بیرن لینڈ کو بھی آج دنیا کی ان لینڈز میں کنورٹ کر لیا ہے جو ان کے لیے فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہم دنیا کے جس خطے میں, جس کو ہم دیپال پور کہتے ہیں, پاک پتن اکاڑا ہے, یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جو اللہ نے اس کو زرخیزی دی ہے بہت زیادہ. تو اس علاقے کی ایک ذمہ داری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے اور بہت زبردست کام آپ لوگ کر رہے ہیں. لیکن کس طریقے سے آپ کی اس ییلڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے نمبر ایک, اور دوسرا آپ کی ییلڈ کے بڑھنے سے آپ کی فائنینس کو یا آپ کی پروفٹیبلٹی کو, منافع کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, یہ اگلا سوال ہے جو اس کانفرنس کی مدد سے ہم اس لوکل کمیونٹی میں اور اسپیشلی جو آرتان سے قاسم جانی صاحب یا آپ فارمرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آپ ان کو نئی ریسرچ اور نئی بریڈز اور نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کروا سکتے ہیں. میرا تعلق, میں بیسکلی ایک زمیندار فیملی سے ہوں, الیکٹریکل انجینئر ہوں اور یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں, اور میں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام ای پی ٹیک ٹیکنالوجیز ہے. اس کا آفس مین فرینکفرٹ کے اندر ہے اور جرمنی کی ٹاپ ٹیک کمپنیز کو ہم وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جس کے اندر آرسم ہے, مرسڈیز ہے, ڈیسٹرون ہے, اور یہ ہمارے پاکستان میں بیٹھے انجینئرز دنیا کے ان ملکوں کے اندر جو کہ ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہے ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. پچھلے سال یہ آیا کہ ہم اپنی صلاحیت سے اپنے ملک کو کیا فائدہ دے رہے ہیں. آپ کا دھرتی, آپ کی زمین سب سے زیادہ پہلی حقدار ہے آپ کی صلاحیت سے پیدا ہونے کے لیے. تو بینگ این ایگریکلچر فیملی میں نے دیکھا کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور جہاں گراؤنڈ واٹر ہے اس کی مینجمنٹ پراپر نہیں ہے. تو ہم نے یہ ریموٹ ویل کی ایک ڈیوائس بنائی جو کہ ٹیوب ویل کے ساتھ لگ جاتی ہے اور ٹیوب ویل کا مکمل کنٹرول آپ کے موبائل فون کے اندر آ جاتا ہے. آپ کسی بھی جگہ سے اس کو چلا سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں, اس کو اسکیڈول کر سکتے ہیں. آپ کے ٹیوب ویل کی مکمل پروٹیکشن کہ وہ کہیں اوور کنٹرول تو نہیں کر رہا, کہیں اس کا کوئی فیس فیلئر سے جلنے کا خطرہ تو نہیں ہے اور کوئی مینٹیننس کی ایشو تو نہیں چل رہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس ایک ڈیوائس کے تھرو اپنے ٹیوب ویل کو کہیں سے بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں سالانہ 2 ارب روپے کسان جو ہے اپنے ٹیوب ویل کو صحیح کرنے پہ خرچ کر دیتے ہیں. یہ ڈیوائس اس ٹیوب ویل کو خراب ہونے سے پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ آپ کے ٹیوب ویل میں یہ پرابلم آنے والا ہے, آپ اس کو پہلے سے دیکھ سکتے ہیں. ہماری یہ ڈیوائس پچھلے سال اقوام متحدہ نے ایک ایگری انو چیلنج کمپٹیشن پوری دنیا میں کروایا. 157 پروڈکٹس پوری دنیا سے آئی اور اس ٹیکنالوجی کو دنیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیکنالوجی لاسٹ ایئر ڈکلیئر کیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بہت سستی ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے واٹر کنزرویشن اور اس کی مینجمنٹ کے لیے وہ کسان کی ٹیبلٹ پہ اس کے موبائل فون کے اندر آ گئے. اگر آپ ایک ذمہ دار ہیں اور آپ سے ساتھ والے ذمہ دار پانی خریدتے ہیں, اس کی مکمل مینجمنٹ آپ کے موبائل فون آٹومیٹک کرتا ہے اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ موبائل کمپنیز کے آپریٹرز نے ہمیں پرووائڈ کر دیا ہے, اس کا بھی اضافی خرچ آپ کی طرف نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں گراؤنڈ کا واٹر کا کوالٹی بہت اچھی ہے, یہ اس میں لگے تو اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. یہ سولر کے ساتھ بھی ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک پریڈکٹیو مینٹیننس اس کے اندر لگ رہی ہے سر. پریڈکٹیو مینٹیننس یہ کرتی ہے کہ موٹر کے خراب ہونے سے پہلے یہ بتا دیتی ہے کہ یہ ایک مسئلہ آنے لگا جس سے آپ کی موٹر خراب ہو سکتی ہے, آپ پہلے سے اس کو بندوبست اس کا کر لیں. آپ ایک ذمہ دار ہیں, آپ کے پاس 200 300 400 ایکڑ زمین ہے, آپ کے 10 12 14 ٹیوب ویل ہیں, ایک ہی ایپ پہ ان 12 کے 12 ٹیوب ویلز کا کنٹرول, مانیٹرنگ,
वो कितने बजे चलाए गए, कितने बजे बंद हुए, पानी कितना निकला उससे, आपने उसको कहाँ मैनेज किया, बिजली कितनी इस्तेमाल हुई, वो किस वक्त में इस्तेमाल हुई और ज़्यादा फ़ायदा किस वक्त में है, ये सारी की सारी चीज़ें इस एक मोबाइल ऐप के अंदर शामिल हैं। आपके मैंने ये रिक्वेस्ट किया जोया साहब से भी और अतीक जोया साहब और बाकी लोगों से कि हम दीपालपुर के अंदर ये मॉडल के तौर पे हम ये फ्री जो है 2 या 3 साइट्स लगा रहे हैं, जहाँ पे भी तारिक तनवीर साहब या कासिम जानी साहब हम आप हमें कहेंगे तो हम अपनी ये साइट को लगा के जाएंगे, फिर 2 साहब आप देखना चाहें। इसके अलावा आज हमारा ताल्लुक इंट्रोडक्शन मुख्तलिफ दोस्तों के साथ हुआ है जो कि यहाँ से पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी ये ऑफर है कि हम जितना भी आपके फार्मर्स को फैसिलिटेट कर सकें थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा ये वेदर अपडेट्स के साथ फ्यूचर में अपडेट होने जा रहा है कि कब और कब पानी का बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है और कब पानी नहीं लगाना, ये भी मोबाइल में सजेशंस के तौर पे आपको मिलेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपने इल्म के साथ, अपनी सलाहियत के साथ अपने मुल्क को और अपने फार्मर को बेनिफिट दे सकें। तो एक दफ़ा फिर इस आलू के कौमी दिन के ऊपर और नेशनल पोटैटोज के ऊपर दीपालपुर को बहुत मुबारकबाद कि आपने कराची से इतने लोगों को होस्ट किया माशाल्लाह और पाकिस्तान से दूसरी जगहों से लोगों को बुलाया। इंशाल्लाह हम अगले साल आएंगे और ज़्यादा वैल्यू लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए हम ले सकें। बहुत शुक्रिया सर। तो साहब आपने गुफ्तगू बहुत मज़े की थी। असल में मैं भी परेशान था, वो बेगम ने कहा था कि आज का त्योहार का दिन है, आज किधर जा रहे हैं। जो दोस्त टाइम को बड़ा मलहूज रखते हुए 2 मिनट की इमरान रफ़ी खिलजी साहब जलंधर सीड से ये हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी प्रोडक्ट के हवाले से टिश्यू कल्चर जो है इन्होंने मुतारिफ करवाया है उसके हवाले से बात करना चाह रहे हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं इमरान रफ़ी खिलजी साहब का और जितने सारे ऑनरेबल गेस्ट हैं इनका शुक्रगुजार कि आज इन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, आप लोगों से बात करने का। चूँकि टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं मुख्तसर सब कहूँगा कि जलंधर प्राइवेट लिमिटेड एक नेशनल सीड कंपनी है जिसने अपना बिजनेस 1952 से स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें ऐसा एक कंपनी नहीं थी। कंपनी जाके 90s में जाके बाकायदा एक उसमें डिज़ाइन हुआ, सारा कुछ हुआ। आज जलंधर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सीड के साथ साथ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में चला हुआ काम कर रही है। आरिफाला बेस करते हूँ मैं और इमरान खिलजी, मेरी ग्रेजुएशन जो है वो एग्रीकल्चर में है। तो आज चूँकि दीपालपुर का एरिया और उस पर आलू का कौमी दिन के हवाले से बात हो रही है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहा हूँ कि आलू के काश्तकार जानते हैं कि इस वक्त सबसे अहम चीज़ है, सबसे महंगी चीज़ है आलू के लिए, वो इसका बीज है। क्योंकि इस साल में अगर देखा जाए तो तकरीबन 13 से 15 हज़ार रुपये का 50 kg का बैग मिलता रहा है, जो कि हॉलैंड से और दूसरे गैर ममालिक से आता है। तो जलंधर ने आज से 7 साल पहले जो है ना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था पाकिस्तान में कि जो सीड आलू का हॉलैंड में, फ्रांस में तैयार होता है टिश्यू कल्चर का, उस सीड को उन्होंने इधर उसके पे अपनी प्रोजेक्ट शुरू किया। उस प्रोजेक्ट पे 5 साल के बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे पहुंचे कि हमने जो हॉलैंड वाला सीड है उससे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का सीड जो है हमने पाकिस्तान में तैयार कर लिया। और इसमें इस वक्त तक 5 वैराइटीज़ हैं, जिसमें मतलब आप कह सकते हैं कि रुस्तम अर्ली जैसे ज़िमीदार जानते हैं करोला के नाम से, रुस्तम वाइट मुजीका के नाम से, और इसके साथ साथ जो है एलआर लेडी रोजीटा जो बेसिकली चिप्स वैरायटी है, लेस वैरायटी है पेप्सी की, ये उसकी वैरायटी है। इसी तरीके से सांते और ये 4 वैरायटीज़ 5 वैरायटीज़ हम लोग इस वक्त दे रहे हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे अब जलंधर पहुंच गई है कि हम कहते हैं कि कोई भी कंपनी है वो हमें अपना सीड दे दे, प्लांट दे दे सीड पोटैटो का, तो हम उसको 2 साल में वो सीड तैयार करके दे देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे सीड लगे हुए हैं यहाँ पे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आलू का जो बाहर से सीड आता है वो तकरीबन 7वीं से 8वीं जनरेशन का होता है। अगर आलू का पौधे को देखा जाए तो टोटल इसकी 12 जनरेशन होती हैं। जितना लेट और आएगा उतना इसका कम हो जाएगा दौरानिया काश्त करने का, क्योंकि आलू का बीज आप एक दफ़ा काश्त करते हैं तो कम से कम 4 साल वो चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जलंधर का सीड है ये
5th जनरेशन का सीड है, यानी इससे सुपीरियर है जो हम हॉलैंड से मंगवाते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये चीपर दैन हॉलैंड। अगर हॉलैंड में इस साल 15,000 का सीड यहाँ पे बिक रहा था आलू का, तो जलंधर ने जो 50 kg का रेट दिया वो 7,000 था। ठीक है, इसी तरीके से क्वालिटी वाइज कि 100% वायरस फ्री और डिजीज फ्री सीड है। और उसके बाद जो मेन एडवांटेज है कि जो जलंधर का टिश्यू कल्चर सीड होता है वो अक्टूबर में यहाँ पे काश्त के लिए दस्तयाब होता है। जबकि अभी हम लोग देखें हमारे पास यहाँ पे राउफ डोला साहब है, आतिफ डोला साहब है, ये इसके ऑपोजिट बिल्कुल राउफ तहसीन साहब का फार्म है, वहाँ पे हमारा पोटैटो सीड लगा हुआ है। लोगों ने जो इम्पोर्टेड 15-15 हज़ार का सीड लगाया वो अभी जर्मिनेशन के प्रोसेस तय कर रहे हैं। इस तरह गुलाम इसी तरह वो अभी उगाव के मराहिल में है। अभी जो सीड है इरशाद साहब, उसका क्या पोजीशन है? अभी जो आपने क्रेट का बीज लगाया आ गया वो तो प्रोसेस पूरे हो गए, दूसरा अभी 50-75 अभी तक जर्मिनेशन यानी उगाव के मराहिल में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो जो आप देखें स्टार्ट में पौधे रखे सीड रखा हुआ है, हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योरिटी पे है और हार्वेस्टिंग हो रही है। तो ये डिजीज फ्री क्रॉप आपके पास आ जाएगी और हेल्दी क्रॉप आ जाएगी, और ये कम से कम आपके पास 5 से 6 साल 7 साल तक आपका जन्म होगा। और ये इसलिए मैं आपसे तमाम दोस्तों से इस प्लेटफॉर्म के वसातत से कहता हूँ कि तमाम जिम्मेदार जलंधर के टिश्यू कल्चर पर लगाएं, टाइम पर लगाएं और उसके साथ साथ बचत भी करें। तो मैं इसके साथ ही अपने इस पैगाम का इख्तिताम करता हूँ। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। डेवलप होती हैं, मार्केट में जाती हैं, और पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में अगर किसी को लीड कहा जाए तो वो साहिवाल से लेके मेरी बहुत सारी एग्रीकल्चर में कोशिशें और काविशें माजी में भी रही। मैंने ज़रिए यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी, मैंने वहाँ पर 7-8 साल एज ए लेक्चर पढ़ाया भी, रिसर्च बोर्ड को 4 साल पिछले चेयर भी किया। मेरे से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि काश्तकार के मसाइल क्या हैं, मसले क्या हैं। आप सब लोग कभी ना कभी काश्तकार हैं, कभी ना कभी आप आड़ती हैं, कभी ना कभी आप साइंसदान हैं, कभी ना कभी कुछ और है। 1000 मसाइल हैं, उस पर बोलना शुरू हो तो हम कई हफ्ते बोल सकते हैं। बीज अच्छा नहीं मिलता, खाद अच्छी नहीं मिलती, जो मिलती है महंगी मिलती है, हमारे पुरसाने हाल कोई नहीं है, काश्तकारों को पूछने वाला कोई नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसके साथ है, सब कुछ एक साइड पे। और जो सबसे बड़ी बात कि काश्तकार खुद अपनी हालत बदलने को तैयार नहीं है, वो इल्म लेने को तैयार नहीं है, वो सीखने को तैयार नहीं है। आपको पता है कहा जाता है कि मंडी को के ऊपर किसी जिन का साया होता है। हर मंडी को किसी न किसी की, मुझे आज तक किसी मंडी में, मैंने समझता अगर इस मंडी में हो या ना हो, बारिश के बाद आप वहां पे दाखिल नहीं हो सकते। इधर हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं इंटरनेशनल नहीं, कच्ची नहीं है, पक्की मंडी। चल बाकी मंडियों में ये बड़े खुशी वाली बात, मैंने इसीलिए का मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी जितनी मंडियां मैंने देखी हैं उन मंडियों में बारिश के बाद आप दाखिल नहीं हो सकते। ट्रक बाहर खड़े हो जाते हैं, बोरियां बाहर खड़ी रहती हैं, रेट नहीं मिलते हैं। तो आज का जो इवेंट करने का एक बहुत बड़ा मकसद था, वो एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के फोरम से। आपको पता है कामयाबी क्या होती है? कामयाबी ये होती है कि तमाम हिस्सेदार वहाँ पे इकट्ठे बैठ जाए। अगर लड़के वाले मौजूद हो और लड़की वाले मौजूद ही ना हो तो वो शादी नहीं हो सकती। बारात वाले भी होने चाहिए, सेरे वाले भी होने चाहिए, हांडी पकाने वाले भी होने चाहिए, फोटो खींचने वाले भी मौजूद होने चाहिए। तो एग्री टूरिज्म का काम ये है कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड कर देना, एक जगह पे बिठा देना, उस दिन का आलमी दिन बना देना। आलमी दिन क्या होता है, बड़ी डिटेल से भी तारिक साहब उसको आगाह करेंगे। शऊर बेदार कर देना। आज आप तकरीबन 100 लोग नहीं बैठे हुए हैं, ये 1 लाख लोग बैठे हुए हैं। कैसे? जब आप अपने मोबाइल से, तस्वीर से, अपने वीडियो से उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे तो हर बंदे के कम से कम 2 से 3 हज़ार दोस्त होते हैं जो उसको देखते हैं कि आज इस तहसील के अंदर
आलू का आलमी कौमी दिन जो है वो मनाया गया। तो कौमी दिन, नेशनल डे जो है, जब गूगल और वो लोग सब उसको देखते हैं तो वो उसको खुद ब खुद हाइप देना शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात पे जाती है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में आलू का एक कौमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, 186 मुल्कों में से बेशुमार हो सकता है पाकिस्तान का नाम भी कभी ना सुना हो। उनको पता चलता है कि पाकिस्तान में आलू पैदा किया जा रहा है, आलू बनाया जा रहा है, आलू को फरोख्त किया जा रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट मौजूद है। कभी भी कोई चीज़ एक दिन में नहीं बनती। आज आपके इस शहर को आलू उगाते हुए शायद कई 100 साल हो चुके हों, और आज से कुछ अरसे में जाके ये वाली मंडी जो थी ये बनना यहाँ पे मंजूर हुई। आज आपने कामयाबी का पहला दरवाज़ा लिया। हो सकता है कल को यहाँ पे इतने लोग बैठे हो, खरीदार बैठे हो, और मैं आपको बड़ा यकीन से बताता हूँ कि अगर आप लोग सी पैक को स्टडी करना शुरू कर दें, सी पैक वो मंसूबा जिसने पाकिस्तान को कनेक्ट करना है उन लोगों के साथ जहाँ पे सर्दियों में कुछ नहीं उगाया जा सकता। अफगानिस्तान बिल्कुल कोयटा से आगे ऑनवर्ड जो है वो अप्रैल तक कुछ नहीं लग सकता, बर्फ पड़ती है। मेरे काश्तकार ने पाकिस्तान में बैठ के उन 50 करोड़ लोगों की भूख को मिटाना है जिनके पास सर्दियों में उगाने के लिए कुछ नहीं है। तो अब मेरे किसान ने क्या सीखना है? आपने सिर्फ खुदारा इल्म से सीखना है, इल्म लेना है, नॉलेज लेना है। आलू, कौन सा आलू पूरी दुनिया में बिकता है, किस रंग का आलू बिकता है, उसकी कितनी शुगर परसेंटेज होनी चाहिए, वो फीका होना चाहिए या मीठा होना चाहिए, मुज़ीका होना चाहिए, वो टेट्राप्लाइड होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए। आमतौर पे आप उसको यही समझते हैं कि लेज वाला आलू है या दूसरा आलू है। अच्छा, आलू को पानी कब मैं एक आसान फसल की मिसाल देने लगा हूँ। मैं हमेशा उसका मिसाल देता हूँ कि गंदम हम दुनिया में नीचे तरीन की पैदावारों में क्यों? गंदम को मेरा काश्तकार पढ़ के काश्त नहीं करता। मैं आलू की तो बहुत बाद की बात है, गंदम के टोटल 3 कीड़े हैं, 4 बीमारी हैं, 5 खाते। 1 घंटे में आप गंदम को उगाना, चलाना और उसको भरपूर पैदावार लेना सीख सकते हैं। आज हम किस लेवल पे खड़े हैं? हम 25 मन एवरेज पे खड़े हैं। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में हमारी एवरेज जो है 25 मन है। आपकी तहसील में 50 मन होगा। हम 80 मन पैदावार ले सकते हैं गंदम से अगर सिर्फ उसकी उसी खाद को जो हम उसको दे रहे हैं उसको तरतीब से देना शुरू कर दें। आपको पता है कि गंदम जो है जब भी अपना सिट्टा निकालती है, ये हमेशा अगर ये इसका सिट्टा मौजूद है तो ये यहाँ से भरना शुरू होगा और नीचे तक भरता चला जाएगा। आखिरी ऊपर का हिस्सा जो है, ये 1/3 हिस्सा जो है ये आखिर में भरता है। और सिर्फ 1 डोज अगर आप बोरिक एसिड की इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, यानी कि 1 पाव बोरिक एसिड स्प्रे कर देते हैं, तो आपकी 10 मन पैदावार बढ़ जाती है। इतनी सी बात को अगर हमारा जिम्मेदार समझ ले कि उसकी हर पैदावार जो है वो 1 पाव बोरिक एसिड क्या होता है जो कैरम बोर्ड खेलने के इस्तेमाल होता है, जरिए दिव्यार की दुकानों पर मिलता है, मेडिकल स्टोर से मिलता है, और हार्डली 100 रुपए की उसकी कीमत होती है उस 250 ग्राम। तो अगर मेरा काश्तकार इसको सीखे आलू को कैसे उगाना है, कहाँ पे काश्त करना है, किसको फरोख्त करना है, किस मंडी में लेके जाना है, उसकी ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसकी सफाई कैसे करनी है, हम इसको कहते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशंस। स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशंस जिसमें बुनियाद से बात शुरू होती है कि काश्त कब करना है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि नवंबर में करना है, सितंबर में करना है, फलां में करना है। हमने टेम्परेचर देख के करना है। नाइट टेम्परेचर फलां दिन का इस जगह पे पहुंचेगा तो हम करेंगे चौधरी, इस जगह पे जाके हमने इसकी काश्त को छोड़ देना है। इसका कीड़ा कब आना है मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए कि जब 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो वाइट फ्लाई अपना अंडा और बच्चा देना शुरू कर देती है। उसकी आपको पता होना चाहिए कि 31 डिग्री टेम्परेचर किस दिन तक पहुंचता है। 31 डिग्री टेम्परेचर जो है उससे पहले पहले आपने वाइट फ्लाई की तमाम अद्वियात लेके अपने पास रख लेना है। आलू पे थ्रिप्स आता है, आलू के ऊपर दूसरे कीड़े आते हैं, उसके ऊपर बीमारियां आती हैं। किस टेम्परेचर में किस मौसम में जाके आलू के ऊपर बीमारियों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए सबसे अच्छी जगह वो मेला होता है जहाँ पे ज़रिए साइंसदान भी मौजूद होते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे मंडी वाले मौजूद हैं, जहाँ पे बेचने वाले मौजूद हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया मौजूद है। ये तमाम लोग आपको आलू की पैदावार को लेने, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वेइंग, पैकिंग, पॉलिशिंग और एक्सपोर्ट करने तक की मालूमात जो है वो एक जगह पर देते हैं।
तो आज का दिन बड़ा अहम है कि आप लोग जब भी कभी आलू के दिन को मनाने के लिए तशरीफ़ लाएं तो जहन में ये लेके आए कि आपने इल्म भी लेना है, आपने काश्तकारी को भी सीखना है, आपने यहाँ पे उस इल्म को लेके जाना है जो कि आपके लिए मनफियत बख्श इल्म होगा। अभी शुरू में ये बात हो रही थी कि वो इंसान दुनिया के लिए मुफीद है जो जितना मुफीद है वो इतना अल्लाह के नज़दीक भी ज़्यादा परहेजगार है, ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये तमाम चीज़ें आपको आज एग्रीकल्चर से मुतल्लिक एक जगह पे मिली। आज हम 100 लोग 200 लोग बैठे हैं। आने वाले दिनों में 5 साल के बाद मुझे लग रहा है इंशाल्लाह ताला एक मेले के ऊपर 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग इकट्ठे हुआ करेंगे। मैं आपको अपने गांव की एक मिसाल देता चलूँ। मेरे गांव में गुड़ का मेला होता है। आलू तो बहुत बड़ी चीज़ है ना जी, आलू तो बड़ा ऊंची चीज़ है। मेरे गांव में गुड़ का मेला होता है। एक दिन में 40,000 लोग गुड़ बनता देखने आते हैं, गुड़ खरीदने के लिए आते हैं। अगर वो सिर्फ 1,000 रुपए का गुड़ भी खरीदे तो उस एक दिन के अंदर मेरे गांव में 4 करोड़ रुपए इंजेक्ट करके जाते हैं। तो आप जरा सोचिएगा इकोनॉमी कैसे चेंज होती है। दीपालपुर पाकिस्तान की महंगी तरीन तहसील बन सकता है। क्यों? जब आपका आलू जो है वो 10,000 रुपए की बोरी 15,000 रुपए की बोरी बिकना शुरू हो। इसके लिए 2 चीज़ें कीजिएगा। आज आपके एक्सपर्ट्स और तमाम वो लोग जिम्मेदारान मौजूद हैं। नंबर 1 ग्लोबल गैप सीखिए, ग्लोबल गैप को सर्टिफाई करवा लें। एक छोटा सा आसान सा प्रोसीजर है जिसमें आपके आलू को पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबल होना क्या चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि ये आलू जो अच्छा खरीद रहा हूँ ये फलां गांव से फलां बंदे के खेत से आया है, उसका स्टिकर लगता है, दैट इज ट्रेसेबिलिटी। आपने अक्सर देखा होगा खरबूजे के ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं कि ये फलाने जिम्मेदार के फार्म से आ रहा है। आइंदा आप उसी स्टिकर का खरबूजा ढूंढ के खाना पसंद करते हैं अगर वो मीठा निकल आए। तो आलू को 2 काम करवाने आपकी एसोसिएशन से मेरी गुजारिश होगी। एक तो ग्लोबल गैप सर्टिफाई करवाएं, शायद माशाल्लाह पहले भी लोगों ने करवाया हो। दूसरा ट्रेसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लें। ये 2 चीज़ें करने के बाद पाकिस्तान का आलू जो है पूरी दुनिया में हर आलू खाने वाले मुल्क तक बड़ी आसानी से अपना पैगाम जो है पहुँचा रहा होगा। आज के दिन में आपके लिए बड़ी हैरत अंगेज बात होगी कि दुनिया का 6ठा बड़ा ज़री मुल्क होने के बावजूद हमारे दुनिया की ट्रेड में जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का शेयर है वो सिर्फ 0.3% है। 0.3% जो कि ना होने के बराबर है। हमें शर्मिंदगी होती है, दुख होता है। और अभी इसमें अगर आलू ना होता, अगर इसमें आपका सिट्रस ना होता, और अगर आप खजूरें ना होती, मैंगो ना होता तो शायद ये 0% के ऊपर होता। तो आज स्काई इज द लिमिट। दुनिया में जितने ऊपर आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। अभी आप समझिए आपने शुरू का पहला कदम उठाया है। जो बच्चा पहला कदम उठाता है उसके लिए पूरी जिंदगी का सफर अभी बाकी होता है। तो आज हम आपके साथ एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान और आलू उगाने वाले, पोटैटो वाले तमाम लोग मिलके खड़े हैं। आप लोगों का इकट्ठा हो जाना इस फोरम के ऊपर इस बात की निशानदेही करता है कि आने वाले दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। राब्ते में रहिएगा जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। अगले स्पीकर को बिला तबईद में दावत देता हूँ। इन्होंने पुट किए हैं, एग्रीकल्चर में इनका बड़ा रोल है। तो मैं स्टेज पे दावत देता हूँ जनाब तारक तनवीर साहब को, फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं। इनके लिए भरपूर क्लैपिंग। तारक तनवीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ भाई, इमरान इम्पैक्ट वाला और अतीक जोया भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। शाद भाई आप तशरीफ लाए सर हमारे लिए बहुत। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मेरे कासम भाई जानी साहब का। सर उन्होंने इतना खूबसूरत, जब हम सोच रहे थे कि जब हम सेलिब्रेशन करेंगे नेशनल पोटैटो डे की तो जगह कहाँ से आएगी, इसको फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो आपका सर शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा मौका दिया। तो मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा। एक तो हम पोटैटो का जो कौमी दिन मनाते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एग्री टूरिज़्म के बारे में थोड़ा सा बताऊँ आपको कि एग्रीकल्चर टूरिज़्म क्या है और ये दुनिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। छोटी सी मिसाल सा दूँगा। पाई फेरू एक छोटा सा एक इलाका है, वहाँ के कुछ फार्मर्स ने बैम्बोस जो है ना ये बांस काश्त करते हैं। हमारे इलाके में जिस तरह पोटैटो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है
वहाँ पे बांस बहुत उगाया जाता है, सरगोदा में सिट्रस बहुत उगाया जाता है, सखर में खजूर उगाई जाती है, इसी तरह सोर चकवाल में ऑलिव उगाया जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमें हर इलाके में एक ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन दी है जिसको इस्तेमाल करके उस इलाके के लोग वहाँ पे टूरिस्ट को ला सकते हैं। एक तो एग्रीकल्चर के अंदर पोटैटो जो है ना, ये यहाँ का दीवालपुर का समझ लें एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसको इस्तेमाल करके हम टूरिज्म ला सकते हैं। उस बांस को जो मैं आपको बता रहा हूँ, कसूर के अंदर जो है पाई फेरू का एक छोटा सा इलाका, सर वहाँ पे 25-30 एकड़ में या 40 एकड़ में बांस लगा हुआ है।